Rasika Pagaria from Aram College. In last lecture, we studied about the reversion. We started with the new subtopic, that is the world history. In that, we studied early and basic journalism. After that, we studied the revolutionary changes in the 19th century. Now, from here onwards, we'll be looking the history of journalism in many other countries. Now, first we'll be studying the history of journalism in France. Newspapers have played a major role in French politics, economic, and society since the 17th century. See, what happened here? Newspapers have played a major role in French politics, like in the economy, society since the 17th century. History of journalism in France explained with following points. See, history of journalism. Upon with these following points, we can explain the history of journalism in France. 1632 to 1815. The first newspaper in France, the Gazette de France, was established in 1632 by the king's physician Theropatus Renaudot with the patronage of Louis XIII. See, the first newspaper in France, it was the Gazette de France, which was established in 1632 by King Renaudot in 1586 to 1653. किसके हेल्प से, किसके उसने इंस्पायर हुआ? ऑफ द लुइस 13 से. All newspapers were subject to pre-publication censorship and served as the instrument of propaganda for the monarchy. See, all newspapers were subject to the pre-publication. See, ऑल न्यूज़पेपर क्या थे? सब्जेक्ट टू द प्री पब्लिकेशन, लाइक प्रॉपर पब्लिश करने से पहले आपको हमको बताना है, और ये एक सर्व्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा फॉर द मोनार्ची. अंडर द एंशिएंट रेजिमी, द मोस्ट प्रोमिनेंट मैगजीन्स वेर Mercure de France, Journal de Savants, founded in 1665 for scientists, and Gazette de France, founded in 1631. सी, तब उसी टाइम पे मोस्ट प्रोमिनेंट मैगजीन्स कौन से थे? मर्क्यू दी फ्रांस, जर्नल दी सेवेंस, विच वर फाउंडेड इन 1665 फॉर साइंटिस्ट, एंड गैजेटे दी फ्रांस, फाउंडेड इन 1631. जिन लॉरेट वॉज वन ऑफ द फ्रेंच फर्स्ट जर्नलिस्ट. जिन लॉरेट क्या था? जिन लॉरेट वॉज वन ऑफ द फ्रांस फर्स्ट जर्नलिस्ट. ही dismantled the weekly news of music, dance and Persian society from 1650 until 1665 in Warsaw in what he called a Gazette Burlesque, assembled in 3 volumes of La Musique Hostocue. So what happened here is that उसने जो वीकली न्यूज़पेपर थे जिसके ऊपर म्यूज़िक, डांस, हाँ, इन सब के ऊपर पर्सियन सोसाइटी, इसके ऊपर वो थोड़ा सा उसने रिस्ट्रिक्शन लाए इन 1650 एंड वाइस वर्सा. द फ्रेंच प्रेस लैग्ड अ जनरेशन बिहाइंड द ब्रिटिश फॉर दे आर कैटर्ड टू द नीड्स. सॉरी, सी व्हाट हैपेंड हियर इज द फ्रेंच प्रेस ने क्या किया? जनरेशन बिहाइंड द ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद जो जनरेशन है उनके अंदर उन्होंने नीड निकाली एरिस्टोक्रेसी की, वाइल द न्यूअर ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स वेर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द मिडिल एंड वर्किंग क्लास. सी, जो नया ब्रिटिश का जो फ्रेंच प्रेस था वो किसके बारे में? वो ब्रिटिश के बिहाइंड ब्रिटिश के बारे में लिखते थे, एंड वो बोलते थे कि एरिस्टोक्रेसी चाहिए हमको, राइट. और जो नई ब्रिटिश कॉलोनीज वगैरह वहाँ पे फॉर्म हुई थी, दे वेर टूवर्ड्स द वर्किंग एंड मिडिल क्लास. वो मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, इसके बारे में लिखते थे. पेरियोडिकल्स वे सेंसर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेरिस. सी, पेरियोडिकल्स सारे कौन चेक करते थे? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेरिस. दे वर नॉट टोटली क्वेश्चन पॉलिटिकली, ऑफन दे क्रिटिसाइज चर्च अब्यूज एंड ब्यूरोक्रेटिस इन एप्टीट्यूड्स. सी, दे वर नॉट टोटली क्वेश्चन पॉलिटिकली. देख, वो टोटली सब अच्छा नहीं चल रहा था वहाँ पे भी,
वो लोग चर्च को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे एंड ब्यूरोक्रेटिस को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे. They supported the monarchy and they played at most a small role in stimulating the revolution. See, they supported the monarchy. उन्होंने किसको सपोर्ट किया? They supported monarchy and they played at a most small role in stimulating the revolution. During the revolution, new periodicals played central roles as propaganda organs for various fractions. See, what happened here is now, जब रिवॉल्यूशन था ना तो नए नए पीरियडिकल्स आए एंड दे प्लेड अ मेजर रोल इन सर्टन पीरियड. जीन पॉल मारट वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट एडिटर. जीन पॉल मारट ये कौन था? ये मोस्ट फॉर्म एडिटर था. ही वॉज द प्रोमिनेंट एडिटर. हिज लामी डू प्यूपिल एडवोकेटेड vigorously for the rights of the lower classes against the enemies of the people Marat hated. See, his Laumini the Pure advocatedly उन्होंने क्या किया? For the right of the lower class against the enemies of the people Marat hated. It closed when he was assassinated. After 1800 Napoleon reimposed strict censorship. See, एक टाइम था जब दूसरा लीडर आया तो उसने क्या किया? थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए. बट फिर क्या हो गया? 18th सेंचुरी में क्या हो गया? नेपोलियंस आए और उन्होंने वापस रिस्ट्रिक्शन लगा दिए एंड ही री इम्पोज द स्ट्रिक्टली सेंसरशिप. सेंसरशिप मतलब क्या? तुमको जो भी पब्लिश करना है पहले हम लोग चेक करेंगे. एक अथॉरिटी रहती थी, वो चेक करता था एंड इफ दे फाउंड इट्स करेक्ट देन ओनली यू कैन पब्लिश. देन 1815 to 1914 magazine flourished after Napoleon's left in 1815. See, magazine फिर से ग्रोथ हुआ मैगजीन का अच्छे से. कब? आफ्टर नेपोलियंस लेफ्ट इन 1815. मोस्ट वेर बेस्ड इन पेरिस एंड मोस्ट एम्फोसाइज्ड लिटरेसी, पोएट्री एंड स्टोरीज. सी, मैगजीन्स क्या है? मैगजीन्स फ्लरिश्ड आफ्टर नेपोलियन लेफ्ट इन 1815. मैगजीन कब फ्लरिश हुए? जब नेपोलियन छोड़ के चले गए. तो मोस्ट ऑफ ए बेस्ड इन पेरिस. तो सारे मैगजीन्स का कहाँ पे ज़्यादा फ्लरिश हुए? पेरिस में हुए. और दे एम्फोसाइज्ड ऑन लिटरेचर, पोएट्री एंड स्टोरीज. इस पे उन्होंने एम्फोसाइज दिया. दे सर्व रिलीजियस, कल्चर, पॉलिटिकल कम्युनिटीज. सी, दे सर्व religious, culture and political committee. In times of political crisis, they expressed and helped shape the view of their relationship and thereby were major elements in the changing political culture. See, they served और उन्होंने रिलीजियस, कल्चर और पॉलिटिकल कम्युनिटी के बारे में भी लिखते थे. फिर जैसे जैसे टाइम बदला, पॉलिटिकल क्राइसिस भी उन्होंने एक्सप्रेस करना चालू किया, जिससे क्या है, लोगों को एक रीडरशिप मिली. लाइक पीपल बिगैन टू व्यू ऑफ देयर रीडरशिप एंड thereby मेजर इम्प्लीमेंट इन द चेंजिंग पॉलिटिकल कल्चर. और फिर क्या हो गया? यहाँ पे धीरे धीरे उनका पॉलिटिकल कल्चर भी चेंज हो गया. फॉर एग्जाम्पल, देयर वेर 8 कैथोलिक पीरियडिकल्स इन 1830 इन पेरिस. सी, फॉर एग्जाम्पल क्या बोला उन्होंने? देयर वेर 8 कैथोलिक पीरियडिकल्स इन 1830 इन पेरिस. सही. None were officially opened or sponsored by the church and they reflected a range of opinion among educated Catholics about current issues such as the 1830 July revolution that overthrew the Bourbon monarchy. Right? See, किसी को भी none were owned, कोई भी है ना, यहाँ पे क्या हो गया? कैथलिक पीरियड्स आया एंड ऑल. देयर वर 8 कैथलिक पीरियडिकल्स. कितने पीरियडिकल्स थे? कैथलिक्स के 8 कैथलिक्स पीरियडिकल इन 1830 इन पेरिस. What happened? Okay, we'll continue. I will just read it. Actually, I missed out the page here, so I will just read it. You listen it carefully. I'm sorry for that. 8 कैथलिक पीरियडिकल्स थे. हाँ, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं था, ना ही ओन्ड बाय द चर्च था. एंड दे रिफ्लेक्टेड अ रेंज ऑफ ओपिनियन अमंग एडुकेटेड कैथलिक्स अबाउट करंट इश्यूज सच एज द 1830 जुलाई रिवोल्यूशन दैट ओवरथ्रू द बोर्बन मोनार्ची. सी,
वो लोग है ना मैगजीन्स लिखते थे, पीरियडिकल्स दे यूज टू राइट अबाउट द कैथलिक्स, बट ये जो भी लिखते थे वो ना ही चर्च ने स्पॉन्सर किया था, ना ही किसी चर्च ने ओन किया था, बट फिर भी वो एडुकेटेड कैथलिक्स जो थे वो सारे करंट इश्यूज लिखते थे। एक इम्पोर्टेंट इशू जो लिखा था उन्होंने, दैट इज़ इन द 1830 जुलाई, इसकी वजह से क्या हो गया, रिवॉल्यूशन हुआ और उन्होंने बोरबॉन मोनार्ची दे थ्रू आउट। Several were strong supporters of the Bourbon king, but all 8 ultimately urged support for the new government. See, several were strong supporter of the Bourbon king. बहुत लोग क्या थे, बोरबॉन किंग के सपोर्टर थे, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, ऑल एट पीरियड कैथलिक पीरियडिकल्स क्या हुए, ऑल तीनों एक साथ आए और उन्होंने नई गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। अब नई गवर्नमेंट आ गई तो क्या हो गया, putting their appeal in terms of preserving civil order. They often discuss the relationship between church and state. What they happened? They often discuss the relationship between church and state. Generally, they urge priests to focus on spiritual matters and not engage in politics. See, what happened here? Generally, they urge priest को उन्होंने बोला कि आप स्पिरिचुअल मैटर्स पे फोकस करो और पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो। Historian M. Patrica Daughtry says this process created a distance between the church and the new monarchy and enabled Catholics to develop a new understanding of church-state relationships and the source of political authority. Right, what happened here? Historian M. Patrica उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला, कैथलिक्स लाइक चर्च और न्यू मोनार्ची के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, कैथलिक्स का नई अंडरस्टैंडिंग ऑफ चर्च रिलेशनशिप एंड द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, इन दोनों में अलग अलग चीज़ें डेवलप हो गई। सो दिस वॉज द पीरियड ऑफ 1815 to 1914. नाउ नेक्स्ट इज द 20th century. The press was handicapped during the war by shortage of newsprint and young journalists and by an abundance of censorship designed to maintain home front moral by minimizing बैड वॉर न्यूज़। सी, अब प्रेस को हैंडीकैप्ड हो गया, प्रेस हैंडीकैप्ड यानी टोटली हॉस्पिटलाइज, नथिंग लाइक दैट सॉर्स, बट जैसे हैंडीकैप कैसे खुद से कुछ नहीं कर सकते वैसा हो गया यहाँ पे, प्रेस वॉज हैंडीकैप्ड ड्यूरिंग द वॉर। क्यों, अब वॉर चल रहा था, अब वॉर में क्या हो गया, न्यूज़ प्रिंट्स, प्रिंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, न्यूज़ क्या प्रिंट करने का इस पर प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि यंग जर्नलिस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं थे उस वक्त, और क्या था, गवर्नमेंट ने उधर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए थे। फर्स्ट लाइक आप वॉर के बारे में कुछ नहीं लिखोगे, वॉर के बारे में बुरी खबर कुछ भी रहती है ना, दे वर नॉट सपोज टू राइट। द पर्सियन न्यूज़पेपर्स were largely stagnant after the war. Circulation inched up to 6 million a day from 5 million in 1910. See, the Persian newspapers क्या है, they were largely stagnant after the war. मतलब अच्छे से उनका ग्रो हो गया आफ्टर वॉर के वजह, मतलब कम हो गया, मतलब एकदम सेल कम हो गया। क्या था, सर्कुलेशन इंच अप टू 6 million a day फ्रॉम स्टैग्नेंटली, एक फटाक से ग्रोथ हो गया रे पर्सियन न्यूज़पेपर का। यहाँ पे देयर वाज अ क्विक ग्रोथ इन द पर्सियन न्यूज़पेपर आफ्टर द वॉर। क्या था, पहले 6 million अ डे था फ्रॉम, अभी पहले 5 million अ डे था, अभी 6 million हो गया। द मेजर पोस्ट वॉर सक्सेस स्टोरी वॉज पेरिस स्टोरी विच लैक्ड एनी पॉलिटिकल एजेंडा, एंड मेजर पोस्ट वॉर सक्सेस स्टोरी वॉज Paris story which lacked any political agenda and was dedicated to providing a mix of sensational reporting to aid circulation and short articles to build prestige. See, यहाँ पे क्या हो गया, द मेजर पोस्ट वॉर सक्सेस स्टोरी। अब मेजर पोस्ट वॉर के बाद सक्सेस स्टोरी वॉज वन ऑफ दैट वॉज पेरिस स्टोरी, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर पॉलिटिकल एजेंडा कुछ भी नहीं था, बट इट वॉज जस्ट रिपोर्टिंग ऑन द एड कैलकुलेशन एंड सीरियस आर्टिकल टू बिल्ड प्रेस्टीज। लाइक कुछ ऐसे आर्टिकल थे जिससे आपके देश का प्रेस्टीज बढ़ रहा है। इट वॉज ऑल अबाउट दैट, मतलब ना पॉलिटिकल एजेंडा के बारे में था, इट वॉज लाइक वॉर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा था, और लाइक कितना एड, कितना अपने को ज़रूरत है अभी, इन सब का कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा सा बोला था रफली, एंड सीरियस आर्टिकल्स टू बिल्ड प्रेस्टीज। और बहुत से सीरियसली आर्टिकल्स थे,
जिससे आपको आपका प्रेस्टीज बढ़ता था. By 1939, its circulation was over 1.7 million, double that of its nearest rival, the tabloid Le Patin Parisine. See, by 1939, उनका circulation was over 1.7 billion, double that of the nearest rival. In addition to its daily paper, Paris sponsored a highly successful women's magazine, that is Marie Claire. सी, उसके साथ साथ क्या हुआ, इन एडिशन टू इट्स डेली पेपर पेरिस, तो क्या हो गया, एक नया मैगजीन भी स्पॉन्सर हो गया उस वक्त, जिसके अंदर वुमेन्स के लिए था. इट वॉज मेंट फॉर द वुमेन, और सारा वुमेन के बारे में लिखा जाता था. इट वॉज मैरिज क्लैरी. Another magazine, Match, was modeled after the photojournalism of the American magazine Life. See, एक और मैगजीन आया जो उसके साथ थोड़ा सा मैच हो रहा था. इट किसके बाद, आफ्टर द फोटो जर्नलिज्म ऑफ द अमेरिकन मैगजीन लाइफ. नाउ जॉन Bruton wrote in 1940 that of the more than 100 daily newspapers in Paris, 2 were honest. Most of the others, from top to bottom, have news column for sale. See, John Bruton wrote in 1940 that. जॉन ग्रूटन क्या लिखा 1914 में, क्या हो गया, मोर देन 100 न्यूज़पेपर इन पेरिस वेर ऑनेस्ट, मतलब वो जो भी पब्लिश करते थे वेर ऑनेस्ट, एंड मोस्ट ऑफ द अदर्स वेर टॉप टू बॉटम हैव न्यू कॉलम फॉर सेल. और बहुत से मैगजीन्स में क्या रहता था, सॉरी न्यूज़पेपर में क्या रहता था, टॉप टू बॉटम बहुत सारे नए नए कॉलम रहते थे जिसके अंदर आप सेल वगैरह, सेल के बारे में वगैरह लिखा जाता था. ही रिपोर्टेड दैट बैक ए ऑनग्ले वॉज साइमल्टेनियसली subsidized by the French government. See, ही रिपोर्ट, उस वक्त रिपोर्ट किया गया था कि दैट बैक ए ऑन्गेन वॉज साइमल्टेनियसली सब्साइडेड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट. जर्मन गवर्नमेंट एंड अलेक्जेंडर स्टैविक्सी एंड दैट इटली allegedly paid 65 million francs for 2 French newspaper in 1935. See, what happened here? German government और अलेक्जेंडर वॉट दे 65 मिलियन फ्रांस को दिया फॉर फ्रेंच न्यूज़पेपर इन 1935. फ्रेंच वॉज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इन द 1930s, बट द पीपल वर केप्ट इन डार्क अबाउट क्रिटिकल इशू ऑफ फॉरेन पॉलिसी. सी, फ्रांस क्या था, फ्रांस उस वक्त एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी थी इन 1930s, बट लोगों को पता नहीं था कि पॉलिटिकल इशू उस वक्त कितने क्रिटिकल थे, और कंट्री के पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ क्या है, और वो कितने क्रिटिकल इश्यूज थे उस वक्त. द गवर्नमेंट टाइटली कंट्रोल्ड ऑल द मीडिया टू promulgate propaganda to support the government's foreign policy of appeasement to the exertion of Italy and especially Nazi German. See what happened here? गवर्नमेंट ने क्या किया था, टाइटली कंट्रोल किया था मीडिया को कि आप हमको गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छे से अपन करते हैं और जो एग्रेशन ऑफ इटली एंड स्पेशली नाजी जर्मन, उससे भी अपन बच सकते हैं. देयर वेर 253 डेली न्यूज़पेपर्स, ऑल ओन्ड सेपरेटली. सी, उस वक्त क्या थे, देयर वेर 253 डेली न्यूज़पेपर्स, राइट, ऑल ओन्ड सेपरेटली, सब सेपरेटली थे. द 5 मेजर नेशनल पेपर्स बेस्ड इन पेरिस वेर all under the control of special interest. See, the 5 major national papers जो पेरिस में थे, they were under the control of special interest, especially right wings political and business interests that supported appeasement. 5 papers जो थे, they were strictly under the control of government, और apart from that एक स्पेशल और स्पेशली राइट विंग पॉलिटिकल एंड बिजनेस इंटरेस्ट, इनको क्या है, इनको गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था उस वक्त. दे वेर ऑल वेनल टेकिंग लार्ज सीक्रेट सब्सिडीज टू प्रमोट द पॉलिसीज ऑफ वेरियस स्पेशल इंटरेस्ट. मनी लीडिंग जर्नलिस्ट वे सीक्रेटली ऑन द गवर्नमेंट पेरोल. सी, बहुत सारे जर्नलिस्ट क्या थे, दे वे सीक्रेटली ऑन द गवर्नमेंट पेरोल, मतलब उनको सारी तनख्वाह गवर्नमेंट देती थी, एंड इट वॉज डन एवरीथिंग सीक्रेटली. The regional and local newspapers were heavily dependent on government advertising and published news and editorials to suit Paris. See,
द रीजनल एंड लोकल न्यूज़पेपर्स क्या थे, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट पे ही डिपेंड रहते थे एंड गवर्नमेंट न्यूज़ पे ही डिपेंड करते थे, ताकि पेरिस को उसका फ़ायदा हो एंड पेरिस कैन रन प्रॉपरली. मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल न्यूज़ वॉज डिस्ट्रिब्यूटेड थ्रू द हैवेस एजेंसी विच वॉज लार्जली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. सी, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ जो थे वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब थे थ्रू द हैवास एजेंसी. क्यों हैवास एजेंसी? उस वक्त वो पूरी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर थी, वो गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में थी, तो उसके मुताबिक बाकी सबको काम करना पड़ता था, तो इसलिए सारा डिस्टर्बेंस था, सारा प्रॉब्लम था. I think we'll wind up the lecture here. In next lecture, we'll complete the history of the Britain, history of journalism in Britain. Thank you.